नमस्कार। मैं आर्टिस्ट विनोद कुमार, हमारे साथ है यास्मीन जी और प्रिंस भाई। अभी थोड़ा बिजी हैं समोसा खाने। चलो, और मैम बताइए, आज हम आए हैं ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली मंडी हाउस टाइमलेस इम्प्रेशंस के शो में मास्टर्स का काम लगा हुआ है। यहाँ पर ललित कला एकेडमी में नंदलाल जी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और इस शो को आगे ये एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं ललित कला एकेडमी आर्टिस्टों के लिए, और ये शो बहुत आगे जाने वाला है। बहुत अच्छे काम है, सब लोग विजिट कीजिए और ज़रूर देखिए मास्टर्स के काम। देखिए, बहुत अच्छा काम है मास्टर्स आर्टिस्ट का, और इन्जॉय कीजिए जैसे हम कर रहे हैं। हम समोसे खा के इन्जॉय कर रहे हैं। ओके। और दिल्ली की तमाम हमारे कलाकार, कड़ी सेंटर के कलाकार, और कड़ी सेंटर का इस बार 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं, जिसमें भी हम लोगों ने कुछ प्लान किया है, करने जा रहे हैं। और कड़ी एक ऐसा सेंटर हो कि पूरे जिस प्रकार से देश भर में इसका नाम रहा है, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक इसका नाम हो, इस प्रकार से हमारी अपनी एक सोच को लेके हम आगे बढ़ेंगे। और आज इस मौके पर मुझे लगता है कि जैसे कि आप आर्ट में भी जाएंगे और वहाँ पे भी कलाओं के जो आज का एक वातावरण बनता जा रहा है, उसमें से अपने यहाँ जो प्रदर्शनी अभी जो लगी है, हमारे पास किस प्रकार की धरोहर है, उसको एक देखने का दिल्ली के कलाकारों को, नहीं पूरे देश भर के कलाकारों को एक मौका है। और अपने यहाँ पे जो है बहुत सी ऐसी कलेक्शन है जिसको हमने अभी डॉक्यूमेंटेशन भी किया है, और जिसका कभी कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, उसको भी रिकॉर्ड अभी हम लोगों ने करीब 8 महीना और राजीव जी के माध्यम से और हमारा सिद्धि जी के माध्यम से जो हम लोगों ने कमेटी बनाई थी, उसको हम जो है वो पूरा अभी सरकार को भी सौंप चुके हैं कि हमारे पास किस प्रकार की जो है वो कलेक्शन है। उनमें से हमने कुछ एक प्रदर्शनी अभी आपके समक्ष रखी है। आज मुझे लगता है कि इस काम में हम सभी इस प्रदर्शनी को एंजॉय करेंगे और आप सभी इस प्रदर्शनी में आए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Now I would like to invite P.S. Krishna Shetty ji. Please say a few words. Friends, I am very happy to be here in this inauguration of the Timeless Impressions exhibition. Today's exhibition is not merely a display of artworks. It's an encounter with history, memory, and the evolving language of Indian art. The works presented here come from the Lalit Kala Academy's own collection, a collection built over decades through national exhibitions, acquisitions, and invaluable contributions from artists across the country. Within this Sangrah reside the voices of masters who shaped the trajectory of modern and contemporary Indian art. When we walk through this exhibition, we are not just viewing images or objects. We are witnessing moments of artistic transformation. These works reflect the aspirations of a young nation, the search for identity, the dialogue between tradition and modernity, and the experimentation that define post-independence Indian art. The masters represented here did not simply practice art. They expanded its vocabulary. They engaged with indigenous knowledge, absorbed global influences, and forged new visual idioms. Their works continue to guide younger generations, reminding us that innovation is always rooted in courage and conviction. Importance of institutional collections. And the institutional collection like that, the Lalit Kala Academy is far more than a storage archive. It is a living cultural repository. Such collections document the evolution of artistic practices, preserve rare and historically significant works, support research and scholarship, inspire artists and students, serve as visual memory for the nation. Experience of standing before an original work of art. Need for annual collection exhibition. I strongly believe that exhibition drawn from the academic collection should be organized at least once in every year. This is important for several reasons. First, reinterpretation of history. Every generation reads art differently. Annual exhibitions allow curators to revisit the collection through new themes and contemporary issues. Second, public access. Many citizens are unaware of the treasures held in the national collection.
Regular exhibition democratize access to cultural heritage. Third, educational value. Students benefit immensely from studying original works. So, I thank the Lalit Kala Academy for organizing such a beautiful show. I also feel that you people will enjoy because some of the rarest works are exhibited here. Thank you. According to you, we have divided the artwork in total 8 themes. So you can enjoy the artwork themes. I request the Honorable Vice Chairman and other dignitaries to kindly release the catalogue and enlighten the plan. Please. आज सुमन जी आता है मनसुआ को अमिता कुछ आ और भी लोग हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सम्मानित सदस्य और आप सभी परिचित है माननीय शेट्टी साहब, ललित कला अकादमी के हमारी टीम जिन्होंने इस पूरी संरचना में अपना योगदान दिया है, अपना मेहनत किया है। हमारे बीच बहुत वरिष्ठ आर्टिस्ट आए हैं और अच्छा लगता है आपको इसी बहाने आज एकत्रित हुए हैं ललित कला के प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि कला जगत आज एक अलग अनुभूति के दौर से गुजर रहा है। पहले कला और संस्कृति कहीं न कहीं कला संस्कृति से विच्छेदित हो गई। आज लगता है कि कला संस्कृति की आत्मा, जो भारत की मूल आत्मा है, उसके साथ अपने एकीकृत रूप में साकार हो रहे हैं आज के समय में। तो इसलिए जो जैसा अध्यक्ष महोदय ने भी कहा कि एक विजन जो है कि विरासत भी और विकास। आज विरासत का मतलब है कि भारत की जो मूल आत्मा है, उस आत्मा को कला के जरिए कैसे युवा पीढ़ी तक या कलाकारों के नजरिए के जरिए से, कलाकारों का अपना दृष्टिकोण होता है, उसके जरिए कैसे पहुंचे। आज हमने देखा ये जो हमारे सामने आर्टवर्क्स ऑन व्यू है, इसमें कम से कम 4 नाम मैं, बाकी तो कला जगत से अखबारों के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो कुछ नाम दिखता है जैसे राम किंकर बैच है, इनके बारे में मुझे पहली बार तब बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि जब माननीय मंत्री जी जो वर्तमान में हैं उनके लिए हम लोग जब पीपीटी का निर्माण कर रहे थे, तब हमने पता किया इस चीज़ को कि इनकी कलाकृति भी हमारे बीच है। हमारी टीम ने बताया कि नहीं, ओरिजिनल है हमारे पास। इसके बाद हमारे साथ लिस्ट में एक हमारे सतीश गुजराल हैं, शायद इनका 100 वर्ष की जर्नी पूरी हो गई है और एनजीएलए में इनके ऊपर एक बहुत ही अच्छा काम एनजीएलए में हुआ है। और वो मैं देख रहा हूँ कि हमारे बीच इस महान विभूति की भी कुछ कलाकृति हमारे बीच उपलब्ध है, जो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है। एक मैं देख रहा हूँ उत्तम पचारने हैं, जो हमारे स्वर्गीय उत्तम पचारने जो हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं। मुझे ये भी बहुत स्पंदित हो रहा हूँ, अनुभूति बहुत अच्छी आ रही है कि हमारे एक भूतपूर्व अध्यक्ष की भी कलाकृति आप दिखाने जा रहे हैं। जर्नी में आपने रखा है। कुछ और नाम हैं जो
जो हमारे साथ काफ़ी जो सतीश गुजराल के अलावा इधर काफ़ी नाम दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि पहले भी हमारी सोच रही है, आप सभी कला जगत के लोग हैं, क्या कलाकार अपने नाम से अमर है या अपनी कलाकृतियों के माध्यम से अमर है? और अगर उनकी कलाकृति हमारे यहाँ सिर्फ कारखानों में बंद रहेगी तो युवा पीढ़ी सिर्फ क्या पत्रिकाओं के माध्यम से उनके बारे में जाने कि कहीं उनका कोई प्रिंट छपा है, कोई पुस्तक में उनका योगदान छपा है, क्या हम उसके बारे में जानें? या फिर वो जिनके पास संसाधनों की कमी नहीं है, ऐसे बड़े बड़े लोग जो गैलरी चलाते हैं, क्या उनके माध्यम से वो कलाकृतियाँ आम जनता तक पहुंच पाएंगी? जहां टिकटेड शो होते हैं, काफ़ी बड़ा टिकट लगता है, या ललित कला जैसी संस्था जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जो कला की युवा पीढ़ी है उसका भी हैंड होल्डिंग करे, और जो हमारे बुजुर्ग कलाकार हैं जिन्होंने अपना एक नामचीन कद स्थापित किया है कला की जगत में, क्या उनका सम्मान नहीं करें इसी बहाने? तो मेरा काम तो दोनों का है, जो युवा पीढ़ी है उसको एक साथ लाने की कोशिश है, जो अमर विभूतियाँ हैं जो हमारे सामने जीवित भी हैं और जिनकी कलाकृति यहाँ पर लग भी रही है। हम लोग सभी इस दुनिया से कूच करेंगे, कैनवास पर उतार कर कूच करेगा, लेकिन वो अमर रहेगा अपनी कलाकृतियों के माध्यम से। उनको अपनी संतानों के होने का गर्व नहीं होता है, उनको अपने शिष्यों के होने का गर्व होता है कि मैंने 4 हाथों को तैयार किया है। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरा जो स्टाइल है, मेरी जो कला शैली है, वो मेरे 5 शिष्यों को समर्पित है। ये 5 मेरी कला की जो धरोहर है उसको आगे ले जाएंगे। कला जगत ऐसे बनता है, अमर विभूतियाँ इस तरह हमारे बीच हमेशा हमारे यादों में जीवित रहती हैं। तो मैं पहली बात तो मैं इस बात पर गर्व करता हूं कि इस तरह के एक हमारे बीच पहल हुई है। हो सकता है कि पहले प्रथम दृष्टिया ये पहल छोटी लगे, लेकिन हमारी सोच बड़ी है। हम इसको लाल किला में भी हम मांगने जा रहे हैं, बैरक के हमें भी मिले और हम एक स्थायी प्रदर्शनी का निर्माण कर सके, जहाँ थीम बेस्ड, मैं अपनी टीम को कहूँगा तो वहाँ थीम बेस्ड मंथली वो प्रदर्शनी लगे और लाल किला के कैलेंडर में बताया जाए लोगों को कि इस महीने ललित कला की तरफ से इस चीज़ों की प्रदर्शनी लगाई जा रही है हमारी। तो मैं ये चाहता हूँ इसको और कोलैबोरेशन आगे बढ़ाइए, हम वहाँ देने को तैयार हैं, जो भी खर्चा होगा इंश्योरेंस वगैरह। तो बस मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आप आए, पधारे और हमारे इस पहल से मैं समझ रहा हूँ कि आप काफ़ी देर से प्रतीक्षारत हैं और कुछ लोग लगता है चले भी गए हैं, लेकिन आप लोग बने रहे, इसके लिए बहुत ये आपका प्यार दिखाता है कि कला के प्रति आपका कितना स्नेह है। आपका स्नेह यूँ ही मिलता रहे ललित कला को, हम नित नई ऊंचाइयाँ प्राप्त करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से आप सभी करेंगे। मैं आप सभी से दोबारा
रविंद्र भवन में है, जहाँ एक बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। टाइमलेस इम्प्रेशन, जो 3 पीढ़ियों को एक जोड़ने का एक प्रयास किया गया ललित कला अकेडमी, और इसके लिए मुख्य रूप से हमारे वाइस चेयरमैन सर नंदा ठाकुर जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस परंपरा को, जो इतना मास्टर्स वर्क जो था, जो डंप रखा था, जो गोदामों में रखा था, उसको आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी के बीच में जोड़ने के लिए एक शो लगाया है, ये टाइमलेस इम्प्रेशन। सभी लोगों से ये है कि आए, नई युवा पीढ़ी आए और वर्तमान के कलाकार भी आए। हमारे मास्टर आर्टिस्ट ने क्या गजब का काम किया, क्योंकि अभी सिर्फ किताबों तक देखते थे, आज वो काम आपको सामने देखने को मिल रहा है। उसे देख के आप प्रेरित हों किस तरह से ओरिजिनल काम किया है, क्योंकि प्रिंटिंग में इतना क्लियर नहीं आता। ये बहुत अच्छी पहल है और जो आने वाली युवा पीढ़ी के लिए बहुत प्रेरणादायक है, और ऐसी ही प्रेरणा और ऐसे ही शुभ कार्य के लिए ऐसी प्रेरणा और ऐसे ही शुभ कार्य के लिए हम ललित कला अकेडमी के वाइस चेयरमैन जी नंदा ठाकुर जी और हमारे सेक्रेटरी साहब और पूरी इनकी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सभी चित्रकारों की ओर से, सभी चित्रकारों के लिए लाभान्वित करने का काम है, और सभी आर्टिस्टों की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, राधे राधे। आप सभी आइए और देखिए ये मास्टर्स आर्टिस्टों की एग्जीबिशन, बहुत ही अच्छी लगेगी आपको भी, और जो चीज़ किताबों में नहीं है वो आपको यहाँ लाइव देखने को मिलेगी। आप सबको